Hello, a very good evening, students. It's me Ajay, and you are watching Ajay tutorial. Today we are going to talk about that how a rate of reaction get affected with rise in temperature. Okay, means we are going to study effect of temperature on a rate of reaction So this is going to be our today's topic, that how does the rate of reaction depends on temperature. So students, a number of examples are given in your NCERT books, and also we already know that the rate of reaction increases with increase in temperature. Okay, so I am writing that rate of reaction is, you can say, directly proportional. Rate of reaction is directly proportional to temperature. Okay students, so it means that the rate of reaction will increase as you will increase the temperature. Temperature increases when temperature will rise, then at the same time the rate of reaction will also increase. Okay, so students, a scientist named Arrhenius, he gave a relation between the rate constant and temperature. Means how does the rate of reaction will vary with increase in temperature. The name of scientist was Arrhenius. Okay, and we should also know that what equation Arrhenius has given. So students, the Arrhenius equation is, you can note down the very important equation is that K is equal to A E minus EA upon RT. This is Arrhenius equation, and this equation is used to calculate activation energy. You can also calculate temperature, also you can calculate rate constant and Arrhenius factor. Okay, so in this equation you can say this is Arrhenius equation. So note कर लेंगे, this is which equation? This is Arrhenius equation. Okay, the name of scientist who has given this equation is Arrhenius. This is Arrhenius equation. So Arrhenius observed that he found experimentally that with rise in temperature by 10 degree, the rate of reaction almost become double. तो Arrhenius ने अपनी इक्वेशन में क्या पाया था जब एक्सपेरिमेंट किया था, that he found that, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, with rise in, नोट कर लेंगे इसको, with rise in temperature by 10 degree, the rate of reaction almost become double. Okay, the rate of reaction almost becomes double. Okay, ये इन्होंने पाया था कि अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले से डबल हो जाएगी. जैसे कि स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि अभी हम एज्यूम करते हैं कि अभी टेम्परेचर T डिग्री है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो 2.5 है, सपोज कर 2.5 है मान लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना 2.5, कब T डिग्री पर। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, मतलब T डिग्री तो पहले से था, 10 डिग्री मैंने और बढ़ा दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी वो जस्ट डबल हो जाती है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। ये कहना था आर्हेनियस का, दैट विथ राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल क्यों हो जाती है, इसको भी हम समझेंगे। थोड़ा टॉपिक ये लेंदी है स्टूडेंट्स, कुछ बहुत सारी बातें इसमें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से पहले ये जो इक्वेशन आपने नोट की थी आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे के का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। के का मतलब रेट कांस्टेंट, आप नोट करते जाइए। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई एम नॉट राइटिंग, तो जगह कम पड़ गई यहाँ पर, तो नहीं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आप नोट करिए। के का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट। ए का मतलब यहाँ पर आर्हेनियस फैक्टर है, ए मीन्स आर्हेनियस फैक्टर। और जो ई ए लिखा हुआ है, ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 8.314 एंड टी इज़ टेम्परेचर। और यहाँ पर जो ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो पूरा पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, जो माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ये पूरा पार्ट जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये आप थोड़ा सा समझ लें तो सही रहेगा आपके लिए स्टूडेंट्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी का स्टूडेंट पहली बात तो सिंबल होता है ई ए, सिंबल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ई ए। ओके, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये समझना है हमें स्टूडेंट्स। किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टिपिकल है वैसे। इसमें जैसे ये यहाँ पर कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। अभी क्या है, अभी ये रिएक्टेंट है और इसको कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। लेकिन इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सबसे पहले तो इस वाले, ये एक एनर्जी बैरियर है, यहाँ तक ये एनर्जी बैरियर है, और इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मतलब अगर ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदली होना चाहता है तो इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, और यहाँ तक ये जो है इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ओके, एनर्जी बैरियर, मतलब पहली बात तो ये है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में तब बदली होते हैं, पहले तो ये लोग कंबाइन होते हैं कैटलिस्ट के साथ में, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म इंटरमीडिएट। क्या बनाएंगे ये लोग, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एनर्जी गैप होता है, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, आप कह सकते हैं द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। वो एनर्जी जो हमें चाहिए इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए या पार करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, पहला चीज़। या आप बोल सकते हैं कि दैट द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट। ठीक है ना, मेन जो दिक्कत है इस रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए मेन जो परेशानी है वो ये है कि इसको कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचना है, टॉप तक। अगर एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद ये प्रोडक्ट में तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। तो मेन जो समस्या है, दिक्कत है, वो कहाँ तक है कि एनर्जी बैरियर को हमें पार करना है, और एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा अभी बताया स्टूडेंट्स मैंने
कि किसी भी रिएक्टेंट को, ये रिएक्टेंट है, इसको बदली होना है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट। ये ठीक है, और यहाँ से लेके ये एनर्जी गैप है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है, ई एक इसका सिंबल होता है। तो डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा, नोट कर लीजिए आप। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी नीडेड या रिक्वायर्ड टू फॉर्म activated complex you can write intermediate, okay, in place of this you will write intermediate, okay। तो इसको कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड to cross energy barrier, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंबल क्या होता है इसका, ई ए, ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद में अब जैसे कि आर्हेनियस ने बोला था कि जब टेम्परेचर को हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है, इसका भी कारण हमें समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये तो अपना मेन टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर नंबर 4.9 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको समझना पड़ेगा, डायग्राम नंबर 4.9। तो इस डायग्राम में आप देखोगे ग्राफ जो प्लॉट है, इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया गया स्टूडेंट्स, और उसमें एक तरफ लिए हुए हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिए हुए हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नीचे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इसका जो है ग्राफ ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहले जो ग्राफ बना हुआ है वो टी टेम्परेचर पर है, इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, और उसके बाद में एक दूसरा और ग्राफ लिया हुआ है जो कि बनाया गया है T+10 पर। ऐसे करके आप ग्राफ देखोगे तो मिलेगा आपको ग्राफ, ये बन नहीं पाया सही से, थोड़ा आप सही से बनाएंगे इसको। तो ये जो टी टेम्परेचर पे था और ये जो था वो T+10 पे ग्राफ बना हुआ है। तो बुक में आप देखोगे तो यहाँ पर जब टी टेम्परेचर था, जब कितना था टेम्परेचर, जब टेम्परेचर टी था उस समय पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, वो केवल इतने थे, ये जो रेड कलर में कर रहा हूँ इतना, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे टी टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है और कितना T+10 हो जाता है, तो आप देखोगे बुक में जो पोर्शन कलर्ड है वो पूरा है, ये मतलब T+10 में ये पूरा पार्ट आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आप देखोगे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले केवल इतने थे, अब वो जस्ट डबल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब पहले इतने मॉलिक्यूल्स के पास केवल एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब इतने सबके पास में एक्टिवेशन एनर्जी हो चुकी है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। तो क्या कारण है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाती है, तो क्या कारण है उसके पीछे, तो आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो विद rise in temperature by 10 degree fraction of molecules having एक्टिवेशन एनर्जी, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो जस्ट डबल हो जाते हैं। विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल, ओके, गेट्स डबल।
ठीक है, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, विच results in doubling the rate of reaction ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आप। तो क्या कारण है कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है? क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले केवल थोड़े मॉलिक्यूल्स थे, पहले केवल सपोज़ अगर T टेम्परेचर है तो केवल पहले 4 मॉलिक्यूल्स के पास में एक्टिवेशन एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर T+10 किया तो कितने मॉलिक्यूल्स के पास में एक्टिवेशन एनर्जी आ गई? 8 के पास में। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट क्या हो गया? डबल हो गए पहले से, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। ये इसका लॉजिक है, पूरा बेसिक नॉलेज यही है, इसका बेसिक लॉजिक इसके पीछे यही है। T टेम्परेचर पे कितने मॉलिक्यूल्स के पास में एक्टिवेशन एनर्जी थी? 4 मॉलिक्यूल्स के पास में थी रिएक्टेंट के। जब कितना किया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री, तो अब 8 के पास में एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, तो 8 लोग अब एनर्जी बैरियर को पार कर जाएंगे, ठीक है ना। तो विथ rise in temperature by 10 degree, now 8 molecules will have activation energy, and now 8 molecules of reactant will able to cross the energy barrier, and hence the rate of reaction will also becomes double. Okay student, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला और ध्यान एक तो मैंने आपको बता दिया आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, उसके अलावा एक एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। एक स्टूडेंट फार्मूला और नोट करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R ब्रैकेट में हो जाएगा 1 upon T1 माइनस 1 upon T2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। जब टेम्परेचर T1 था तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, T2 था टेम्परेचर तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, बोर्ड में आते भी हैं, तो नोट करेंगे इसको, फार्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने 2 फार्मूले पढ़े, एक तो ये वाला फार्मूला पढ़ लिया और एक था आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो क्या थी, K इज़ इक्वल टू AE माइनस E अपॉन RT, ठीक है ना। इनके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन दोनों को रिवाइज करो, पढ़ो इनको। ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स कवर कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपने रहेंगे अगले वीडियो में बता रहा हूँ मैं, अगला जो अपना एपिसोड रहेगा या अपने लेक्चर रहेगा उसमें मैं कवर करूँगा इसको, 2 टॉपिक को। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें हम किसकी बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे उसमें। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी आज हमने बात कर ली, क्या होता है, ये इक्वेशन की बात हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कीप वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल, in the same way you will get the videos on important topics which are given in NCERT, and definitely you will score good marks in your board examinations.